Yes, everyone. How are you? I hope so. You are fine at your home. Yes. So, बेटा जी आपके सामने स्क्रीन विजिबल है properly, right? And today we are going to start to do worksheet number one. Worksheet number one we are going to start today, beta. So, please look properly at your screen. Okay, because there are most important questions that we have to cover in this class. Okay. So beta first question is multiple choice question है आपके सामने which of the following is not a component of aggregate demand. कौन सा इनमें से ऐसा है कि जो एक component नहीं है aggregate demand का बताइए. And the answer will be both A and B. ठीक है. Break even point is achieved when national income is equal to consumption, consumption is equal to saving, consumption is equal to investment, national income is greater than consumption. Reply me fast. What will be the answer for the question? The answer will be A. Okay. AG curve is a horizontal straight line parallel to x-axis, positively sloped curve, negatively sloped curve, vertical straight line parallel to the x-axis, parallel to the y-axis. Sorry. And the answer will be positively sloped curve. Aggregate supply and dash are always equal. What is that? जो always equal होता है. That is national income. Consumption function is a functional relationship between dash and dash. Reply me fast so that I can also know now what you are guessing and your answer will be right or wrong. And the answer will be a fifth question is consumption and national income. Is it clear? The next question is which of the following is a which of these is a component of aggregate demand? इनमें से कौन सा एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है? आधे तो सीधा कहेंगे सर ऑल ऑफ दीज. उनको ऑल ऑफ दीज दिखता है और ऑल ऑफ दीज पे ही टिक कर देते हैं. बट उनका गैस भी सही रहता है क्योंकि ऑल ऑफ दीज जहाँ पे दिखता है वहां पे ऑल ऑफ दीज आने के चांसेस होते हैं जैसे कि आपने टर्म वन में देख चुके हो. राइट. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू टाइप का एडी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द इट स्टार्ट्स पॉइंट अबव द ऑरिजिन. एडी कर्व कहाँ से स्टार्ट होती है? ये देखो ना, ये ओरिजिन है. एडी कर्व यहाँ से स्टार्ट होती है, ये ओरिजिन है. ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट हो रही है ना, नीचे थोड़ा स्टार्ट हो रही है. यहाँ से थोड़ा जाती है, वो तो यहाँ से जाती है. दैट इज इट क्लियर? आंसर क्लियर हो गया? क्या आएगा इसका? Now we are going to do some numerically one mark questions और एक numerical type भी आपके लिए क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर. राइट. So the first question is give the meaning of aggregate demand. Aggregate demand होती क्या? It is the sum total of expenditure which people plan to incur on the purchase of production of goods and services in the economy. That's it, according to different levels of income. The next question is what are the components of aggregate demand? Aggregate demand की क्या क्या components है? मैंने कहा था जब ये वन मार्क के अंदर आएगा तो आपको एक्सप्लेन करना है सिर्फ ओपन इकोनॉमी वाला. मतलब C is equal to sorry AD is equal to C plus I plus G plus X minus M, where C is equal to consumption, I is equal to investment, G is equal to government, and X is equal to export, and M is equal to import. Third question is what determines the level of consumption expenditure? बेटा इसका आंसर आपको मैंने अभी वैसे नहीं बताया था, अब बता रहा हूँ तो आप लिख लीजिए. इसका आंसर है हमारा इनकम. आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन इज इनकम. ठीक है. व्हाट इज मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? जहां पर दो डेफिनेशन है इसकी. वेयर a point where income is equal to consumption or a point where s is equal to 0. ठीक है. What is APS? Sorry, APC and how it is calculated? It is the proportion of additional. It is the proportion of total income which is to be consumed. Which is to be consumed.
क्लियर है? हाँ जी बेटा, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी क्लास। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज it is the proportion of total income which is to be consumed and the formula for the question is मतलब APC के लिए जो formula use करते हैं and that is C upon Y. C upon Y. The next question is what is MPC and how it is calculated. MPC क्या होता है और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक्चुअली कैमरा में प्रॉब्लम आ रही थी तभी मैंने वीडियो पॉज करी थी। सो आई एम रिमूविंग द फेस कैम ऑफ माई फेस कैम हटा रहा हूँ मैं इस वीडियो के लिए। ये आप ठीक हो गया? नहीं हुआ, अभी मैं हिलते ही वो बटन है, राइट? सो आई एम गोइंग फ्रॉम हियर एंड यस। हाँ जी बेटा, तो क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज एमपीसी एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। बेटा देखो एमपीसी होता क्या है? एमपीसी इज it is the proportion of additional income which is to be consumed and how it is calculated. It is calculated by delta stroke मतलब delta c by delta y. Clear है? Seventh question, what is APS and how what is the formula for measurement of it? तो हमें वो दे रहा है। तो APS होता है it is the proportion of total income which is to be saved और कैलकुलेट के लिए S upon Y। ठीक है? और एमपीसी क्या होता है? प्रपोर्शन ऑफ सॉरी एमपीएस क्या होता है? प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम व्हिच इज टू बी सेव्ड। इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या होता है ये? मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। हाँ जी। So the next question is the last question for your worksheet number 1 is this. ये आपको एक डायग्राम गिवन है यहाँ पर साइड पे। आपको इसमें से बताना है कि इसमें से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वैल्यू बेटा आपकी कितनी है यहाँ पर? आई एम टेलिंग यू द आंसर एंड दैट इज 40 करोड़। व्हाई 40 करोड़? बिकॉज ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? देखिए, जहां से हमारी कंजम्पशन की लाइन स्टार्ट होती है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज 40 and that will be in crores। ठीक है ना? The next question is what is break even level of income and what is the level of income at zero। देखो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग कितनी है हमारी? 100 है। और y इज इक्वल टू सी भी कितना है हमारा? 100 है। और इधर भी ये कितना आ रहा है? 100 ही आ रहा है। तो दैट मीन्स इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है? आगे कहते हैं हाउ मच एपीसी कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई। ये पॉइंट ई है, इसके ऊपर एपीसी कितना होएगा? हमें पता है एपीसी होता है सी अपॉन वाई। सी अपॉन वाई। तो यहाँ पर सी भी 100 है हमारा और वाई भी 100 है। तो दैट मीन्स दैट विल बी 1। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के भी दे दे ना तो आपका आंसर हमेशा 1 ही होना चाहिए इसका। ठीक है ना? एपीसी अगर बेटा वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे पॉइंट ई बोला है, वैसे आपका पॉइंट ई ये बनता है। ठीक है ना? ई पॉइंट हमने इसको लेट करा है अभी के, क्योंकि डायग्राम में पॉसिबल नहीं था, डायग्राम के अंदर था नहीं, तो मैंने आपको ऑरली बता दिया। लेकिन अगर वो पूछ ले इक्विलिब्रियम पे एपीसी कितना होएगा तो योर आंसर विल बी 1, कि वो 1 होएगा। अब कहते हैं एमपीसी 0.6 है तो सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन बताओ। बेटा देखो, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे निकालना है आपको ये। ठीक है ना? तो देखो, लुक हियर, सी हमारा होता है सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। होता है ये? होता है कि नहीं होता? होता है ना? यस। तो हमारा सी बार कितना है? सी बार हमें दे रखा नहीं, हमें एमपीसी दे रखा है। एमपीसी है 0.6y और सी बार हमें दे नहीं रखा, हमने निकाला था। दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बच्चे कहेंगे 40 क्यों ले रहे हैं अब? बिकॉज बेटा सी बार होता ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। तो यहाँ पर आ गया 40 प्लस 0.06y। ठीक है? और यही हमारा आ गया सी फंक्शन। इस वे के अंदर हमने सी फंक्शन निकाल लिया। अब मैंने कहा था अगर आपका सी फंक्शन आ जाएगा तो एस फंक्शन भी इजीली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एस होता है हमारा माइनस सी बार प्लस
MPS इंटू वाई। तो यहां से हमारा सेविंग फंक्शन निकल के आता है -40 प्लस MPS कैसे आएगा इंटू वाई, तो हमें पता है। अब बात आई MPS कैसे आएगा, तो हमने पढ़ा था MPS प्लस MPC या MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो MPS will be 1 minus MPC, right? Then MPS is equal to 1 minus 0.6. That comes to be 0.4. So here we will put this value to the here. We will put this value here. So that will come 0.4. Is it clear to everyone? And that is the solution of your question number 10. ये आपका आंसर निकल के आता है। बेटा ये क्वेश्चन आपका 2 to 3 मार्क्स के अंदर ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा और आपको ये कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, और इसी के ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये नहीं करा ना, देन यू विल गेट ओनली 1 मार्क आउट ऑफ 2। और अगर 3 मार्क्स का तो आपको सिर्फ 1.5 ही देगा वो टीचर, क्योंकि इसका और इसका देगा सिर्फ। इसका तो आपने करा ही नहीं तो वो देगा क्यों? ठीक है ना? तो दैट विल कवर द मार्क्स। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।